अपनी 3 बेटियों को, एक की उम्र 3 साल, 7 साल और 10 साल, उनको बारी बारी नहर में फेंक दिया। और इससे बात करते हैं जी कि कितनी उम्र सन तेरी बच्चियां दियां? ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ। 10 ਸਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ 7 ਕੁ ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਕੂਲ ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਾਜਵਾਲ ਨਹਿਰ ਚ ਨਹਿਰ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਂਕਿਆ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਿਹਨੂੰ ਸਟਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਟਾਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਤਹਿਰੀਨ ਫਾਤਮਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੂੰ ਸਟਾਈ? ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਗੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਉਸ time ਸੱਟਣਾ ਮੈਂ ਪਿਆ? ਬਾਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੱਟਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ ਹੈਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, क्यों सटे? दोनों एक सेकंड वास्ते भी है जो नाज़रीन, जब ये खबर पता चली है ना कि सगे बाप ने अपनी 3 मासूम फूल जैसी बच्चियाँ उनको नहर में फेंक दिया है, तो यकीन करें दिल दहल उठे लोगों के इलाके में। जब उन बच्चियों को उनकी मैयतें जब नहर से निकाली गई, 3 दिन बाद रेस्क्यू की गई, उनकी बॉडीज़ को जो है वो बरामद किया गया, नहर से निकाला गया, तो यकीन करें पूरा गाँव रो रहा था। लेकिन अगर नहीं कोई रो रहा था तो ये शख्स है और अभी भी इसको कोई भी गिल्ट नहीं है। कितना अर्सा हो गया तेरी शादी ਨੂੰ? ਹੋਗਾ ਨਾ 13 14 ਸਾਲ 13-14 ਸਾਲ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਫੁੱਫੀਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਤੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਕਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ छोटी ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ छोटी बच्चियां नाल तो जुल्म किया। और हमें इसकी बीवी ने बताया जी कि इसकी एक बेटी जो है बड़ी, उसने भागने की कोशिश की है, तो उसने उसको बकायदा पहले टांग पे फायर मारा है और फिर इसने उसके सर पे फायर मारा है और उसको कत्ल करके फिर नहर में फेंका है। तेरे हाथ नहीं कमे? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਰ ਫੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ फिर सटे ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਫੈਰ ਫੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕਹਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਚਾਉਣ ਫੈਰ ਵਾਸਤੇ। ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੈਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਯਾਰ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਫਸੋਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ चीज़ की? नाज़रीन, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जब ऐसी हरकतें लोग कर बैठते हैं, उसके बाद फिर अफसोस का फ़ायदा। यार टुरो मैंने 3 मासूम बच्चियों को मारने के बाद ये शख्स, अब इस वक्त इस शख्स को मेरे पे गुस्सा आ रहा है। और जब आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं ना इनके मियाँ बीवी के झगड़े, अब इसको शायद इसको अपनी बीवी पे शक था बकौल इसके की शक से तुम? कोई शक नहीं मैंने किसी ते कहना होंगे ना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ माफ़ी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ। माफ़ी मांगना था उन्होंने मैं बच्चियाँ दी, यानी कि ये लोग समझते हैं कि जो बच्चे जो ये इनके अपने बच्चे हैं, ये उनको मारें, उनको कुछ भी करें और बाद में ये अपनी बीवियों से माफ़ी मांग लेते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। अब इस बच्ची के हवाले से यकीन करें कि 3 मासूम बच्चियों को बारी बारी शख्स ने जब नहर में फेंका, उस वक्त अंदाज़ा करें उन बच्चियों पर क्या गुजर रही हो। और वो एक बेटी ने यह भी कहा था कि अब्बा जी अबू क्या उर्दू बोलती सन? तेरियां बच्चियाँ उर्दू बोलती सन की क्या तेरी बेटी ने तेन जारे जाओ कि मैं क्या वे एक कहता है ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅੱਬਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੋ? मैं चुप कर गया, मैं की क्या था ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂ? लेकिन हफ्ता पे ऐसे मगरों खतरा पे इधर कुत्ते करते फिरते सी ਹਾਂ थोड़ा जाके नहर ते पर गया सी ਹਾਂ, ते ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਨਾ ਇਧਰ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਸਾਂ? कुत्तों में डर गया बच्चे में गल ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛੱਡ ਗਿਆ। बच्चे नहर के सट्टे ने मैं एक बार भी आख्या उन्होंने बदा के बयान की जो तो गल तो हुई जो हकीकत है। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ। बच्चियां दुनिया देखदियां ने रेस्क्यू कर लिया सी रेस्क्यू टीम इस केस की जो तफ्तीशी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। वो जमाल साहब बोले बच्चे ने जमाल साहब से इन्होंने इस केस को सॉर्ट आउट किया है। जमाल साहब अब बताइए कि ज़रा ये बताइए कि ये शख्स कह रहा है जी जो बच्चियाँ इसने नहर में फेंकी थी, ये कह रहा है जी कि वो ज़िंदा है
और वो रेस्क्यू हो गई हैं। आप सारा वकूआ बताएं, इस शख्स ने क्या किया था और क्या मामला थे? नहीं, ये गलत बयानी से काम ले रहा है। वो उनको नहर में फेंका था तो वो तो वफात पा चुकी है। बच्चियां अब इस दुनिया में नहीं रही? गोली बच्चे गाली इस दुनिया में नहीं रहे। हथियार ही नहीं सीगा तो गोली आज किसी केस को दूसरा रुख देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, नहरी सड़ मैं के सुटिया कोई हथियार नहीं से मेरे को लेगा नहर सड़ दे ओह नहर सुटिया तो कितने दिन बाद बच्चों को नहर से निकाला गया जी? ये दूसरे दिन ही 10 दिन हाँ? तीसरे दिन बाद क्यों 2 दिन दिन बाद बाद पहली बच्ची की डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी, तीनों की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। तीनों की मिल चुकी है। और उनको किसने फेंका था जी? मर्डर ने किसने फेंका किया? था जी। इससे पहले इसने क्या किया इस शख्स ने? पहले फायरिंग जो उसके अच्छा बच्चियों को मारने के फोन बाद कितना किने से भी क्या- इस वास्ते बच्चे फेंके गए ना पहले ये अपनी बच्चियों को स्कूल से लेकर और राजोवाल वाली नहर की तरफ गया है। वहाँ बच्चियाँ फेंक कर फिर ये वापस आया। फिर वापस आकर इसने फायरिंग वाला हुआ किया। कितनी देर फायरिंग करता रहा ये? फायरिंग तकरीबन कुछ 4 से 4.5 घंटे हो गए फायरिंग। कितने लोगों को मारा इसने? 3 बंदों को जख्मी किया, एक को कत्ल किया। और अपनी बच्चियों को समझ में ला के कितने लोगों का ये कातिल बन गया? ये 4 बंदों को कत्ल किया। ये शख्स 4 लोगों का 4 कातिल लोगों है। का। तो कुछ वजह पता चली इसकी कि क्या वजह थी इसने सारी हरकत? इसने आपको क्या बयान दिया, क्या बताया तफ्तीश के दौरान? नहीं, ये बयान देता है कि इसकी बीवी का किरदार ठीक नहीं था, तो उसके ऊपर इसे रंज था। और इसका फिर ये भी कहता है कि मुझे पता था कि मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा ये वकूआ करके, तो मैं अपनी बेटियों को पहले ख़त्म कर जाऊँ कि बाद में उन्हें कोई उनका ऊपर कोई होगा नहीं कोई जिम्मेदार। तो अगर मान भी लिया जाए तो ऐसे बनता है जी किसी बच्ची को अपने इसने जुल्म किया है ना। बच्चियों का क्या अदालत कसूर था? सजा देगी ये बच्चे तो नहीं बच्चियों का कोई कसूर नहीं। तुसियां अच्छा, इसमें अगर यही मसला था भाई, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये मसला था तो आप अगर आपकी बात मान ली जाए, आप अलहदगी इख्तियार कर लेते, अपनी बीवी से और अपनी बच्चियों की परवरिश करते अच्छे तरीके से। वो तो मैंने आख्या 2 महीने पहले एक दिन को मसला है दस मैंने सही नहीं था। हाँ, तो फिर बाद इसकी होया फिर बाद उस दिन मैं नशे की हालत से मैंने एडा पता नहीं होगा। बच्चे में सट्टे जरूर से मैं कोई उन्होंने टाइम तक लत्था भी नहीं मारिया। ये नहरी सट दे पीछे की रह गया, नहरी सट वो दे तो हुण सुट्टे ने ना यार, उस दिन भी ਇਹਨੂੰ कोई चीज़ नहीं मारी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਫੈਰ ਵੱਜਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰ ਫੈਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਸੀ। ਅਸਲਾ ਚਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ फायरिंग की है? यार आवाज़ ही नहीं है ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹੋਰ मैं तेन की दसां। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका रवैया भी आप देख सकते हैं। हम यही गुजारिश करेंगे और यहाँ पर मैं ज़रूर बात करूँगा, अप्रिशिएट भी हम करेंगे एफर्ट को। आरपीओ साहब, आरपीओ फरहान साहब और डीपीओ सोहेब अशरफ साहब और उनकी पूरी टीम ने इस केस को सॉर्ट आउट किया है। इस शख्स ने जिस तरह जुल्म किया अपनी बच्चियों पे, इसका तो पता नहीं चलना था। बहरहाल पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी की है। हमारी गुजारिश है आला अफसरान से कि ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये शख्स दोबारा बाहर आ जाएगा तो फिर खुदा ना खास्ता ये जो अपने बच्चियों को नहीं छोड़ रहा, जो 4-4 5-5 कत्ल एक टाइम में कर रहे हैं, वो किसी को भी मार सकता है बाद में। तो जे तुम माफ़ कर देता जाए तो बाहर आके फिर तो नहीं किसी ने मारेगा मैं किन्नू हुण मारना? मैं अपने आप च मरिया पिया। कि मैं किन्नू मार सकना? मैं अपने आप च मरिया पिया। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਜੇ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ? ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ अपनी बच्चियों नहीं माफ़ किया तो अपने वास्ते अपनी जे ये एक अलमिया है, जब अपने पे बन आती है ना तो फिर ये लोग अपनी माफ़ियाँ मांगने पर लग पड़ते हैं। ये शख्स जिस तरह से माफ़ी मांग रहा है जी कि मैं जे मैंने माफ़ी लभेगी, मैं अपनी बेटी को इसने माफ़ नहीं किया। तो फुप्पी दा की मामला चल रहा है तेरा? किसी ने शादी तो पहले किन पसंद करता सा? नहीं कोई मसला वो नहीं सी है फिर? अच्छा, कोई मसला तो हुण माफ़ी मंगेगा तू? हाँ, किस मुँह नाल माफ़ी मंगेगा? ਉਹ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, जिन्हों ने वेख्या है बेचारियाँ ने कि साड़ा प्यू सानू बारी बारी सट्टी जा रहा है। अब जे आप इसकी बातों से आप अंदाज़ा करें नाज़रीन। बहरहाल हमारी ये गुजारिश है कि अल्लाह ताला ऐसे वक्त से सब बच्चों को बचाए और ऐसे लोगों के शर से बचाए। अगर ऐसे लोग अपनी औलाद का ख्याल नहीं रख सकते तो ये ऐसे लोग बे औलाद ही बेहतर, जो बाद में 10 शादी के 12 साल बाद इसको पता लगता है जी इसकी बीवी का किरदार ठीक नहीं है और फिर अपनी बेटियों को मार देता है। बीवी ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭਜਵਾਤਾ ਸੀ? नहीं बीवी उत्थे गई चले थाने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ बीवी ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂੰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਹਿਰ ਹੀ ਤੇ ਸਟਿਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਸੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਫੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ यार ना उस तो सटन वाला तो 3-4 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची नहर में गिरेगी तो बचेगी? ਨਹਿਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ।
बीवी को मंगेगा तो माफी, गलती हो गई बीवी को मंगेगा ना बधाई तो केस मतलब देखा है जेड़ा मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇਗਾ साफ साफ ਤੇ ਹੁਣ तेरी गैरत कितने गई। ये मामला था जी, ये दिखाना था जी हम ये एक ऐसा हमारा अलमिया हमारे इस माशरे में कि अब ये गैरत के नाम पर या इस तरह के नाम पर जो जुल्म करते हैं लोग, अपने बच्चों को मार देते हैं। इसने बकौल इसके इसलिए मारा है जी कि वड्डियां हो जांदियां ते बाद कोई खुदा ना खासा उन्होंने कोई नुकसान ना हो। यही गल है जो मर्जी यार समझ लो, तो सड़ चो दिता है मैं उन्होंने तो फिर मैं बस। की दसा। बहरहाल जी अल्लाह ताला सब पर रहम करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ऐसे ज़ालिमों के शर से बचाए। और हम यही गुजारिश करेंगे कि इस नाम नहाद किसी पर इल्ज़ाम लगाकर इस तरह के मामलात करना और अपने बच्चों पर जुल्म करना, अल्लाह ताला ऐसे जुल्म से हर किसी को बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए और हमारी ये गुजारिश है कि ऐसे ज़ालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि अगर ये शख्स फिर बाहर आएगा तो ये फिर और भी लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। जो अब माफ़ियाँ मांग रहा है पकड़े जाने के बाद, लेकिन इसने अपनी बच्चियों पर रहम नहीं किया।